السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل سے نماز کے مسائل ایک ایک کر کے ہم سیکھتے آ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اسی طرح دین کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ دیکھیے، یہ نماز کے مسائل جاننا ہر مسلمان پر ضروری اور واجب ہے، کیونکہ نماز ہر مسلمان پر واجب ہے۔ جب نماز پڑھنا واجب ہے تو نماز کے مسائل جاننا بھی ضروری اور واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ۔ ایک صحابی رسول مسجد میں آئے وضو کر کے، جن کا نام خلاد ابن رافع تھا۔ وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں، نماز پڑھ کے سلام کرتے ہیں۔ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دے کر ان سے بولتے ہیں، ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ صحابی جاتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دے کر پھر بولتے ہیں، ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ دوسری مرتبہ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یعنی تیسری مرتبہ نماز پڑھ کے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سلام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دے کر پھر بولتے ہیں، ارجع فصلی فانک لم تصلی، دوبارہ جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تین مرتبہ خلاد ابن رافع نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے تین مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا، اور تیسری مرتبہ بھی آپ نے کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ صحابی رسول نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی بول رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھا تم نے۔ تو معلوم کیا ہوا اس سے؟ ہاں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتے۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مسئلہ تھا۔ نماز تو پڑھ رہے تھے، وہ رکوع بھی کر رہے تھے، سجدے بھی کر رہے تھے، دیکھنے والے کو لگ رہا تھا کہ نماز پڑھ رہے ہو، لیکن نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز نہیں تھی ان کی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے تین مرتبہ ان کو نماز دہرانے کا حکم دیا۔ اب تیسری مرتبہ وہ صحابی رسول اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام، میں نے جو نماز پڑھی میں اتنا ہی جانتا ہوں، یہی طریقہ مجھے معلوم ہے نماز کا، اور اس سے بہتر نماز پڑھنا مجھے نہیں آتا، لہٰذا آپ ہی مجھے نماز کا مکمل طریقہ سکھائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر ان کو نماز کا مکمل طریقہ بتایا۔ پورے صحابہ موجود تھے مسجد نبوی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے۔ تو محترم حضرات، یہ حدیث پیش کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہم نماز پڑھنے کے سلسلے میں نماز کے مسائل کو جانیں گے، تب صحیح معنوں میں ہم نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھ سکیں گے۔ اگر نماز کے مسائل نہیں معلوم ہے تو پھر آدمی غلطیاں کر جاتا ہے نماز میں، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے یہ ہمارے دروس اور کلاسز چل رہے ہیں، نماز کے مسائل کو لے کر تفصیلی انداز میں ایک ایک کر کے ہم سیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے درس میں مختصر وقت میں ایک ٹاپک سے متعلق بات ہوگی، نماز کے مسئلے سے متعلق، وہ ہے نماز کے ارکان۔ آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے نماز کے ارکان۔ ارکان کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سادہ اور سیدھا مطلب یہی ہے، اگر وہ ارکان میں سے کوئی بھی رکن آپ نے چھوڑ دیا، یعنی نماز کے اندر کچھ کام ایسے ہیں، اگر ان کاموں میں سے کوئی کام آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ جو چیزیں ہیں اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ بسا اوقات ہم لوگ نماز کے ارکان میں سے کبھی کبھار رکن چھوڑ دیتے ہیں، لیکن مسئلہ نہیں معلوم رہتا، نماز پھر سے دہراتے نہیں۔
क्योंकि मालूम नहीं था, समझ लिए कि नमाज हो गई, जबकि आपकी नमाज नहीं होकर रहती है। इसीलिए अरकान का मतलब नमाज में होने वाले कुछ ऐसे काम, उनमें से अगर किसी एक को भी आप छोड़ देंगे, आपकी नमाज नहीं होती, आपकी नमाज नहीं होती। इसको क्या बोलते हैं? अरकान बोलते हैं। अच्छा, इससे पहले के दर्स में मैंने आपके सामने नमाज के शुरूत का जिक्र किया था, और वहां भी मैंने ये बताया था कि नमाज के शुरूत का मतलब भी ये है कि वो शर्त अगर है तो आपकी नमाज सही है, अगर वो शर्त नहीं है तो आपकी नमाज सही नहीं है। अरकान का मामला भी ऐसे ही है, लेकिन फर्क क्या है दोनों में, शुरूत में और अरकान में? एक बहुत सारे फर्क हैं, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, एक मोटे अंदाज में आपको एक फर्क बताकर आगे बढ़ता हूं। अरकान और शुरूत में फर्क क्या है? कॉमन चीज इसमें क्या है? कॉमन, कोई भी चीज अगर उनमें से छूट जाए तो आपकी नमाज नहीं होती, ये कॉमन चीज है। शुरूत में भी वही होता है, अरकान में भी वही है मामला, लेकिन फर्क है दोनों में, एक बेसिकली फर्क ये है, नमाज के शराइत जो है ना, वो नमाज से पहले ही करना है आपको। जैसे नमाज के शुरूत में से एक शर्त वजू करना, ये नमाज में करते कि नमाज से पहले करते? आप नमाज से पहले करते। अच्छा, किबला रुख होकर नमाज पढ़ना, मैं बताया था नमाज के शुरूत में से एक शर्त क्या है? किबला रुख होकर आप नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, ये किबला जो रुख होते हैं नमाज में होते हैं कि नमाज से पहले होते हैं? आप नमाज से पहले होते हैं। अच्छा, मैं ये भी बताया था कि नमाज के शुरूत में से एक शर्त नीयत करना, ये नीयत नमाज रकात बांध के करते कि अभी नमाज से पहले करते? आप नीयत नमाज से पहले करते, ये शर्त है। इसी तरह मैं ये बताया था कि जिस जगह आप नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह पाक होना चाहिए, आपका कपड़ा भी पाक होना, आपका जिस्म भी पाक होना। ये तमाम चीजें आप कब कर लेते? नमाज से पहले तैयारी कर लेते। तो ये जो शुरूत है ना, ये नमाज से पहले के काम है ये। लेकिन अरकान कब होते? नमाज में होते अरकान, नमाज से पहले नहीं। नमाज जब पढ़ रहे हैं आप, उस दौरान ये अरकान होते हैं। तो बेसिकली फर्क, शुरूत नमाज से पहले होने वाले काम, और अरकान नमाज में होने वाले काम, नमाज में होने वाले काम। अभी मैं इंशाल्लाह एक एक करके बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए, मैं अभी जो अभी आपके सामने जो हदीस पेश किया था ना, एक साहबी रसूल आए, 3 मरतबा नमाज पढ़े, आपने कहा नमाज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई थी नमाज उनकी? उसकी बुनियादी वजह यह थी कि उन्होंने रुकन को छोड़ दिया था। एक रुकन यानी एक ऐसा काम करना था उनको नमाज में जो नहीं कर रहे थे वो। इसीलिए अल्लाह के नबी बोल रहे थे कि तुम्हारी नमाज नहीं हुई, नमाज पढ़ो। क्या काम नहीं कर रहे थे वो? इत्मीनान के साथ नमाज नहीं पढ़ रहे थे। रुकू कर रहे थे लेकिन अर्जेंट रुकू कर रहे थे, एकदम रुकू से उठ रहे हैं, रुकू में जा रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, सरजे से उठ रहे हैं, इत्मीनान ही नहीं, एकदम फास्ट, एकदम 5G के स्पीड में, समझिए आप, बहुत स्पीड में थे, इत्मीनान नहीं था उनकी नमाज। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, और इत्मीनान नमाज का एक अहम रुकन है, अगर वो है तो आपकी नमाज सही है। अगर रुकन नहीं है, बिल्कुल जल्दबाजी है नमाज में, नमाज नहीं होती। उस सहाबी के अंदर यही कमी थी। तो इसीलिए अरकान का जानना बहुत जरूरी। अरकान का मतलब क्या मालूम? पिल्लर को बोलते, अरबी जुबान में रुकन किसे बोलते मालूम? पिल्लर। ये पिल्लर है तो छत है, पिल्लर तोड़ दिए तो छत गिर जाता। इसी तरह कुछ ऐसे काम है नमाज में करना ही, आप छोड़ेंगे तो नमाज नहीं होती। क्या क्या है? अब मैं एक एक करके आपको बताता जाऊंगा इंशाअल्लाह, उसको याद रखना आप। और उन अरकान में से कोई भी रुकन छोड़ देंगे आप, तब करना क्या मैं आगे बताऊंगा। पहले एक एक करके बताऊंगा कि अरकान क्या है, फिर बाद में उसके मसाइल बताऊंगा इंशाअल्लाह मिसाल के जरिए से। सबसे पहला रुकन नमाज का जो नमाज में होता वो है तकबीर तहरीमा कहना। तकबीर तहरीमा, तकबीर तहरीमा किसे बोलते? जब नमाज शुरू करते वक्त आप अल्लाह अकबर बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते? तकबीर तहरीमा। इसको तकबीर तहरीमा बोलते हैं। ये रुकन है नमाज का। ये नमाज का क्या है? रुकन है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
मिफ्ताह الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا کہ تکبیر تحریمہ کہنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اچھا، ایک کوئی آدمی اللہ اکبر بولنے کے بجائے دوسرا کوئی ورڈ استعمال کیا، اس کی نماز ہوگی؟ اللہ اکبر ہی بولنا اس کو. نہیں، میں اللہ اکبر نہیں بولتا، اللہ الرحمن بولوں گا. رحمان بھی اللہ کا نام ہے نا. اگر کوئی آدمی اللہ اکبر بولنے کے بجائے اللہ الرحمن اللہ الرحیم بول کے نماز شروع کیا، اس کی نماز ہوتی نہیں ہوتی. اللہ اکبر یہ جو ورڈ ہے نا، اللہ اکبر، یہی بولنا ہے. اسی کو تکبیر تحریمہ بولتے. تکبیر تحریمہ کا مطلب حرام کرنے والی تکبیر. کیا کرنے والی تکبیر؟ حرام کرنے والی تکبیر. کیا چیزوں کو حرام کرتی بھئی تکبیر ہے؟ کون سی چیزوں کو حرام کرتی ہے تکبیر؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ جی، اور کسی کا کوئی جواب؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا. اور کسی کا؟ یعنی جب آپ اللہ اکبر بولتے ہیں نا، پہلی تکبیر، اس کو کیا اللہ کے نبی نے کیا نام دیا اس کا؟ تکبیر تحریمہ، یعنی وہ تحریمها التکبیر کا، یعنی حرام کرنے والی تکبیر ہے وہ. یعنی کچھ چیزوں کو حرام کر دیتی. وہ کون سی چیزوں کو حرام کرتی تکبیر ہو؟ ہاں جی، بہت اچھے. ایک بول رہے ہیں کہ کھانا کھانے کو حرام کر دیتی. صحیح جواب ہے. اللہ اکبر بول کے کھڑے ہونے کے بعد کھا سکتے آپ؟ کھانا جائز ہے نا، نماز کے علاوہ کبھی بھی کھا سکتے ہیں آپ، لیکن اللہ اکبر بولنے کے بعد کھا سکتے آپ. تو کھانے کو کیا کر دیا اس تکبیر نے؟ حرام کر دیا، ایک وقت کے لیے، نماز ختم ہونے تک. اور کوئی چیز جس کو حرام کرتی تکبیر یہ؟ ہاں، بات چیت. جواب دے رہے ہیں بات چیت. صحیح ہے کیا نہیں جواب؟ یہ بالکل صحیح ہے جواب. نماز میں بات کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں. اللہ اکبر بول کر رکعت باندھنے سے پہلے بات کر سکتے ہیں آپ؟ کر سکتے کیا نہیں؟ اللہ اکبر بول دیے، بات چیت بند. یعنی بات چیت جو کہ جائز تھی نماز سے پہلے، اس تکبیر نے اس کو حرام کر دیا، ایک وقت کے لیے حرام کر دیا. اور کوئی چیز؟ ٹھیک ہے، جوابات جو دیے آپ یوں بول سکتے ہیں شارٹ میں، پورا مکمل جواب. اسی حلال چیزیں جو نماز میں کرنے سے جس کو منع کیا گیا ہے، ایسی تمام چیزوں کو یہ تکبیر کیا کر دیتی ہے؟ حرام کر دیتی ہے. چاہے بات چیت ہو، کھانا ہو، پینا ہو، ہنسنا ہو. ہنسنا بھی جائز نہیں، اللہ اکبر بولتے ہی نہیں ہنسنا چاہیے آدمی. تو جائز چیزیں جس کو اسلام نے نماز کی حالت میں منع کیا نہیں کرنا بول کے، ان تمام چیزوں کو یہ تکبیر جو ہے جائز چیزوں کو حرام کر دیتی ہے. کھانا پینا جائز ہے، بات کرنا جائز ہے، مگر تکبیر بولنے کے بعد وہ چیزیں حرام ہو جاتی. اسی لیے اس کو حرام کرنے والی تکبیر کہا گیا. خیر، یہ پہلا رکن ہے اللہ اکبر بولنا. یہ پہلا رکن. آدمی اگر بھول کر اللہ اکبر بول کے رکعت نہیں باندھا، اللہ اکبر نہیں بولا، اس کی نماز نہیں ہوگی. وہ کتنے ہی نمازیں پڑھ لے، اس کی نماز نہیں ہوتی. پھر سے اس کو نماز دہرانا پڑے گا. اگر وہ بھول کر اللہ اکبر بولنے کے بجائے ڈائریکٹ آ کے رکعت باندھ دیا، ارجنٹ میں تھا، اللہ اکبر بولا نہیں، ڈائریکٹ آ کے رکعت باندھ دیا، بعد میں یاد آیا اس کو نماز میں ہی اللہ اکبر نہیں بولا تھا، فوراً کیا کرنا ہے؟ اس کو نماز توڑ دینا ہے. نماز توڑ کے پھر سے نماز شروع کرنا ہے. تکبیر تحریمہ یہ کیا ہے؟ یہ پہلا رکن ہے. یہ پہلا رکن ہے نماز کا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. دوسرا رکن کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کے بعد دوسرا جو رکن ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ ہے کسی آدمی کے پاس اگر طاقت ہے، اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا رکن ہے، ضروری ہے. جس کے پاس طاقت ہے کھڑے ہونے کی، وہ کھڑے ہو کر ہی نماز ادا کرے گا. جس کے پاس طاقت رہنے کے بعد بھی اگر فرض نماز میں بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو نماز ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی. ہاں، آدمی مجبور ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھنے کی اجازت ہے اسے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جس آدمی کے پاس طاقت ہے، ایسے طاقت والے آدمی پر ضروری ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، فرض نماز.
नफिल नमाज बैठ के पढ़ सकते क्या नहीं पढ़ सकते? नफिल नमाज 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना चाह रहे हैं आप, ताकत है आपके पास खड़े होने की, फिर भी आप क्या कर रहे हैं? बैठ के नमाज। नमाज होगी क्या नहीं होगी आपकी? नफिल नमाज की बात कर रहा हूं। होगी नहीं होगी नफिल नमाज? होती या नहीं होती? नफिल नमाज आदमी के पास ताकत है खड़े होने की, फिर भी वो बैठकर पढ़ रहा है। फर्ज नमाज नहीं होती, लेकिन नफिल नमाज हो जाती है। नफिल नमाज बैठ के पढ़ सकता आदमी, लेकिन ताकत रहने के बाद भी बैठकर पढ़ रहा तो सवाब में कमी आती, लेकिन नमाज तो उसकी हो जाती, नफिल नमाज हो जाती। लेकिन फर्ज नमाज नहीं होती। ताकत रहने के बाद भी अगर आदमी खड़ा होकर ना पढ़े, बैठकर पढ़े, उसकी नमाज नहीं होती। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह के लिए तुम खड़े होकर नमाज अदा करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से हुक्म देते हुए फरमाया सल्ली क़ाइमन फ़इन लम तस्तति फ़क़ाइदन फ़इन लम तस्तति फ़इन लम तस्तति फ़अला जंबिन औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। खड़े होकर नमाज पढ़ो, अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो बैठकर पढ़ो, बैठकर पढ़ने की भी ताकत नहीं है तो लेट कर पढ़ो। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है। इससे मालूम हुआ जिस आदमी के पास ताकत है खड़े होकर नमाज पढ़ना रुकन है, ताकत नहीं है बैठकर पढ़ सकता। वाज़ेह है ये दूसरा रुकन, लेकिन नफिल नमाज में बैठकर भी पढ़ सकता है आदमी, हो जाती है नमाज इंशाअल्लाह। लेकिन ताकत जिसके पास है बेहतर है कि वो खड़े होकर नमाज पढ़ेगा, नफिल नमाज। ये दूसरा रुकन हो गया। तीसरा रुकन क्या है नमाज का? तीसरा रुकन, खड़े होकर आप नमाज शुरू करते हैं, क्या पढ़ते हैं आप? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व ये दुआ पढ़ते हैं ना। अच्छा, वो दुआ पढ़ने के बाद क्या पढ़ते? औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते। उसके बाद क्या पढ़ते? सूरह फातिहा। सूरह फातिहा पढ़ना क्या है? रुकन है, वाजिब है, फर्ज है। सूरह फातिहा पढ़े बगैर नमाज नहीं होती। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस में फरमाया ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, जिसने सूरह फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। अच्छा, नफिल नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़े तो चलता क्या? हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना है, चाहे फर्ज नमाज हो, नफिल नमाज हो, सुन्नत नमाज हो, हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना रुकन है। ये काम करना ही करना है आपको। नमाज नहीं करेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब। लेकिन एक आदमी ऐसा है जो वजू करके आया मस्जिद में, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, रुकू में है इमाम साहब, आप आए वजू करके, इमाम को देखे कि इमाम हालत रुकू में, रुकू की हालत में, ऐसे वक्त में आए आप रुकू की हालत में मिल गए, डायरेक्ट सूरह फातिहा नहीं पढ़े आप, डायरेक्ट क्या कर रहे हैं आप? रुकू कर रहे हैं, तो आपकी नमाज यानी वो रकात आपकी हो जाती है या नहीं होती है रकात? ये अक्सर सवाल करते हैं ना लोग। मैं क्या बोला? सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। लेकिन एक आदमी आया वजू करके, इमाम साहब रुकू में है, रुकू में मिल गया वो आके, अब वो रकात उसको मिली या नहीं मिली? नहीं मिली। क्यों? इसलिए कि सूरह फातिहा हर नहीं पढ़े वो, जबकि सूरह फातिहा पढ़ना हर रकात में जरूरी है। और किसी का कोई जवाब? रकात हो जाती कभी कभार, बार बार नहीं करना है ऐसा। अच्छा, लेकिन बार बार कर रहा है आदमी, मतलब बार बार मतलब जानबूझ के नहीं, लेकिन वो ऐसा हो रहा है कि वो जब वजू करके आ रहा है तो इमाम सब रुकू में मिल रहे हैं उसको, वो जानबूझ के नहीं कर रहा, मगर बार बार हो रहा है, उसको इत्तेफाक ऐसा हो रहा है कि वो बार बार वो मामला हो रहा है उसके साथ, मतलब आपके हिसाब से नहीं होगी रकात।
کبھی کبھار ہو جاتی ہے. آپ کا کیا جواب تھا؟ ہوتی وہ رکعت. دیکھیے میں نے کہا صحیح جواب ہے, جزاک اللہ خیرن. دیکھیے میں نے کہا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, کریکٹ یہی بولا تھا نا. لیکن ایک حالت ایسی ہے جس حالت میں سورہ فاتحہ پڑھے بغیر بھی نماز یا رکعت ہو جاتی ہے, نماز ہو جاتی ہے. وہ سچویشن کون سا ہے؟ وہ سچویشن یہ ہے کہ اگر امام رکوع کی حالت میں ہے اور اسی رکوع کی حالت میں کوئی پیچھے والا آ کر مل جاتا ہے امام کے ساتھ, سورہ فاتحہ پڑھے بغیر ڈائریکٹ رکوع میں مل گیا, رکوع میں ملنے کی وجہ سے اس کی رکعت ہو جاتی ہے. یہ ایک سچویشن اس سے الگ ہے, اس میں نماز ہو جاتی. باقی دوسری حالتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک صحابی رسول ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ کو. وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں, دروازے کے پاس وضو کر کے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی رکوع کی حالت میں ہیں. تو دروازے کے پاس میں ہی نیت کر کے رکوع کرتے ہوئے آتے ہیں صف میں. کہاں سے رکوع کرتے ہوئے آتے ہیں؟ وہ دروازے کے پاس سے, وہیں سے اللہ اکبر بول کے رکوع میں چلے جاتے ہیں دروازے کے پاس. وہاں سے رکوع کرتے ہوئے صف میں آ کر ملتے ہیں. نماز ختم ہو جاتی ہے, رکعت دہراتے نہیں, وہ دہراتے نہیں, وہ رکوع میں جو مل گئی نا اس کو وہ رکعت شمار کر لیتے ہیں ابو بکرہ, دہراتے نہیں اس کو. نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکرہ سے کہتے ہیں کہ ابو بکرہ اللہ تعالیٰ آپ کے حرص میں اضافہ کرے, لیکن ایسا دوبارہ مت کرو. زادک اللہ حرصا ولا تعد, اللہ آپ کے حرص کو بڑھائے, دوبارہ ایسا مت کرو. کیا مت کرو؟ نہیں, اللہ کے نبی نے ان کو کیا نہیں کرنے کا حکم دیا؟ ایسا مت کرو بولا نا, کیا مت کرو بولا؟ بہت اچھے, جو وہ دروازے کے پاس سے ہی رکوع کرتے ہوئے آئے نا, ایسا مت کرو. نارمل حالت میں آؤ, صف میں جب تم مل جاؤ امام جس حالت میں ہے اس حالت میں چلے جاؤ. دروازے کے پاس سے ہی رکوع کرتے ہوئے جو تمہیں آئے نا, ایسا مت کرو, ایسا مت کرو. مطلب اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک آدمی وضو کر کے آیا, امام صاحب سجدے میں ہے, تو کیا وہ دروازے کے پاس سے ہی سجدے کرتے ہوئے آئے گا؟ یہاں پہ وہ نارمل حالت میں آئے گا, صف مل جانے میں, صف میں آنے کے بعد دیکھے گا امام کس حالت میں, اس حالت میں وہ چلا جائے گا. لیکن انہوں نے ایک غلطی کیا کی تھی ابو بکرہ نے, ہاں, دروازے کے پاس سے ہی رکوع کرتے ہوئے آئے تھے. ایسا مت کرو بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ میں سے تھوڑا بہت اگر چالاک کی کا, دیکھو ایسے وقت میں معلوم ہوتا کون کتنے چالاک ہیں بول. اللہ کے نبی کو کیسے معلوم ہوا؟ نماز پڑھا رہے تھے نا وہ. جی بہت اچھے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا, اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے, کیسے معلوم ہوا؟ ابو بکرہ وہ دروازے کے پاس سے رکو, کوئی بتائے کیا ان کو؟ حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کوئی بتائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے معلوم ہوا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا تھی؟ آپ پیچھے سے بھی دیکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے بھی نظر آتا تھا. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت میں ایک خصوصیت تھی. خود اللہ کے نبی اپنے بارے میں بتاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں. تو یہ دوسرا رکن کون سا ہے؟ تیسرا رکن سورہ فاتحہ پڑھنا. اور سورہ فاتحہ ایک حالت میں معاف ہو جاتا ہے. کب؟ جب امام رکوع کی حالت میں ہے, تب آ کر آدمی مل گیا. واضح ہے مسئلہ یہ. یہاں ایک چیز میں بتا کر آگے بڑھتا ہوں تکبیر تحریمہ کے بارے میں. بعض لوگ آتے ہیں نا وضو کر کے, امام صاحب رکوع کی حالت میں ہیں, تو بغیر اللہ اکبر بولے رکوع میں چلے جاتے ہیں. ڈائریکٹ آئے, کچھ بھی بولے بغیر رکوع میں چلے جاتے ہیں. ایسوں کی نماز نہیں ہوتی. ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ جیسے ہی آئے نا صف میں ملے تو اللہ اکبر بول کے جانا. کیونکہ میں بولا تھا نا تکبیر تحریمہ کہنا رکن ہے. بعض لوگ جلد بازی میں آتے, کچھ بھی زبان سے ادا نہیں کرتے, ڈائریکٹ کیا کرتے؟ رکوع میں چلے جاتے, اللہ اکبر بولتے ہی نہیں. نماز نہیں ہوتی ان کی, اللہ اکبر بول کے ہی جانا ہے. اسی سے ایک بات اور یاد آئی مجھے.
देखो जानबूझ के देखना नहीं है लोगों को कैसे पढ़ रहे हैं नमाज, कभी कभार नजर पड़ जाती है। ऐसा कभी कभार मुझे नजर पड़ी है, याद भी नहीं है किस पर नजर पड़ी, लेकिन कुछ लोगों पे पड़ी थी नजर। नमाज पढ़ रहे हैं, जबान हरकत ही नहीं है, जबान पे कोई हरकत नहीं, नमाज ऐसा ही खड़े हैं। नमाज पढ़ रहे हैं मतलब देख के जबान बिल्कुल बंद है, रुकू कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, नमाज नहीं होती है ऐसे। जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, कोई सूरत पढ़ते हैं, रुकू की दुआ पढ़ते हैं, सजदे की दुआ पढ़ते हैं, जबान हरकत में आना चाहिए। हाँ, हिस्सा भी पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जबान जो हरकत है ना, हरकत में आना चाहिए। खामोश बैठ के दिल में पढ़ रहे थे, नहीं होती नमाज। होठों से हरकत दे के पढ़ना है। हाँ, इस मसले को याद रखेंगे आप। और अगर आप में से कोई किसी को देखे ये गलती करते हुए, फौरन आप बताएं उसको, अच्छे से बताएं कि भाई ऐसा नहीं है मसला, होठों को हरकत दे के पढ़िए, आपको अजर व सवाब मिलेगा। मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अजरी फाइली। आपने एक भलाई का हुक्म दिया उसे, तो उसकी वजह से आपको भी नेकियां मिलेंगी। क्योंकि इस तरह कभी कभार गलतियां देखने को मिलती, अगर आप कोई नजर आए तो आप उनको अच्छे से समझाइए। ठीक है, तीसरा रुकन क्या था? सूरह फातिहा पढ़ना। चौथा रुकन क्या है? चौथा काम ऐसा है जो नमाज की हालत में आपको करना ही करना है, उसके बगैर नमाज नहीं होती। चौथा रुकन है रुकू करना। क्या करना? रुकू करना। रुकू के बगैर नमाज नहीं होती। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सुम्मा रका हत्ता तत्मइन्ना राकिया, यानी वो जो सहाबी बगैर इत्मीनान की नमाज पढ़ रहे थे ना, उनको नबी तालीम देते हुए कहा कि देखो रुकू करो, रुकू करो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनु रुकू, ऐ ईमान वालों रुकू करो। कुरान में भी हुक्म दिया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुक्म दिया है, तो रुकू करना ही करना है, रुकू के बगैर नमाज नहीं हो। नंबर 5, पांचवा रुकन, इत्मीनान के साथ रुकू करना। एक है रुकू करना, कैसा करना, ये पांचवा रुकन, इत्मीनान के साथ रुकू करना। इत्मीनान का क्या मतलब है? इत्मीनान का मतलब ये है कि आप जब रुकू करते हैं तो ये दोनों हाथ हैं आपके, ये दोनों हाथ आपके घुटनों तक जाना चाहिए और घुटनों को आप अच्छी तरीके से पकड़ लेना चाहिए। हाथों से किसको पकड़ना है? गुड़वों को। घुटनों को आप अच्छी तरीके से पकड़ के झुकना है, ये है इत्मीनान। बाज लोग नमाज पढ़ रहे हैं ना, रुकू करते, अभी ऐसा हाथ टच भी नहीं रहता, उड़ जाते हैं, करते हैं ना ऐसा, है ना? मतलब कैसा? ऐसा नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर बोल के जाते, ऐसा अच्छे से पकड़ते ही नहीं घुटनों को। अगर ये मामला है तो नमाज नहीं होती, नमाज नहीं होती। अच्छी तरीके से आप ऐसा पकड़ेंगे, ये जरूरी है, ये रुकन है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। जैसा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सहाबी से हुक्म देते हुए कहा सुम्मा रका हत्ता तत्मइन्ना राकिया, तुम रुकू करो यहां तक कि इत्मीनान और सुकून के साथ रुकू करो। ये पांचवा रुकन हो गया। अच्छा, छठवां रुकन क्या है? छठवां रुकन, छठा रुकन है रुकू के बाद खड़े होना। रुकू करने के बाद क्या करते हैं आप? खड़े होते। एक आदमी नमाज पढ़ रहा, रुकू कर रहा, अभी ऐसा खड़ा ही नहीं हुआ इत्मीनान से, और रुकू करके वैसे ही सजदे में चला गया, खड़े बगैर ही, उठकर ऐसा सीधा खड़े बगैर ही डायरेक्ट सजदे में, उसकी नमाज होगी? नहीं होगी। छठवां रुकन क्या है? रुकू के बाद उठकर आराम से खड़े हो जाना, आराम से, इत्मीनान से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को हुक्म देते हुए फरमाया सुम्मा रफा, अपने सर को उठाओ रुकू से, हाँ, हत्ता तअतदिल काइमन, यहां तक कि तुम खड़े होकर सीधे हो जाओ। तो ये छठा रुकन है कि आदमी रुकू से उठकर आराम से खड़ा हो जाए। खड़े बगैर ही डायरेक्ट रुकू करके सजदे में चला गया, उसकी नमाज नहीं होती। सातवां रुकन क्या है? सातवां रुकन सजदा करना। सातवां रुकन, सातवां काम क्या है? सजदा करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को हुक्म दिया सुम्मस्जुद, फिर तुम सजदा करो।
मालूम यह हुआ। और कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू, सजदा करो, करना है सजदा, सजदे के बगैर नमाज नहीं होती। अच्छा, छठा रुकन क्या है? सातवां या आठवां, आठवां या सातवां, कौन सा है रुकन? हमारी तरतीब जो चल रही है, सातवां क्या? सातवां रुकन, इत्मीनान के साथ सजदा करना। इत्मीनान के साथ सजदा करना, सजदे में भी जल्दबाजी नहीं। अभी आपकी नाक, आपकी पेशानी, आपके हाथ टच भी नहीं हुए जमीन से अच्छे से, फिर उड़ गया, नमाज नहीं होती। आप सजदा इत्मीनान के साथ करना। क्या मतलब सजदा इत्मीनान के साथ करने का क्या मतलब है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस में फरमाया, उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअति अअज़म, मुझे अल्लाह ताला ने इस बात का हुक्म दिया है कि मैं 7 पार्ट्स पर, 7 हिस्सों पर जिस्म के सजदा करूं। जिस्म के 7 हिस्सों पर मैं सजदा करूं। 7 हिस्से कौन से वो? सुन रहे हैं आप? 7 हिस्से कौन से वो जिसको टच करना है आप सजदे की हालत में? पेशानी, पेशानी के साथ नाक, ये दोनों मिलाकर एक है। बाज लोग सजदा करते नाक टच नहीं करते जमीन पे, ये गलती है, ऐसा नहीं करना। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पेशानी के साथ नाक भी। देखो ये मामूली मामूली मसले हैं, लेकिन कोताही होती है इसमें। कहीं ऐसा ना हो जिंदगी भर आपने नमाजें पढ़ी, अल्लाह ना करे, क़ियामत के दिन जाने के बाद मालूम हुआ कि नमाज आपके अच्छे अमाल में दर्ज ही नहीं है। वहां अफसोस मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की तरफ से खबर दिया गया कि नहीं, आपकी नमाज सही नहीं थी, आप पेशानी नहीं लगाते थे, जबकि अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया था। ये मामूली मसले नहीं है, ये नमाज के मसले हैं, नमाज की कबूलियत का मसला है ये। इसीलिए जल्दबाजी नहीं करना। पेशानी के साथ आप नाक भी टच करना है जमीन से। अच्छा ठीक है, एक चीज हो गई, और बाकी चीजें 2 हाथ, 3 हो गए, 3 चीजें। ये 2 हाथ रखना है आप, 2 घुटने, गुड़गे है ना, ये 2 गुड़गे, कितने हो गए चीजा? 5। पेशानी और नाक 1, 2, 3, 4, 5, और 2 क्या है? पैर जो है ना, पैर की जो उंगलियां हैं वो टच होना। अच्छा, आप ये गलती बार बार देखते होंगे लोगों से, सजदा कर रहे हैं, पैरों को ऊपर उठाते हैं। ये जो पैर है ना, देखे हैं आप किसी को? होता है ऐसा, अक्सर गलतियां होती हैं। सजदा करते हुए पीछे के पैर उठाए रहते हैं। नहीं, पीछे के जो पैर है, जो उंगलियां हैं पैर के, वो जमीन से टच होना चाहिए, ये जरूरी है। ये मतलब होता है इत्मीनान के साथ सजदा करने का। 7 आज़ा आपके टच हो जमीन पर। हां, अगर किसी की ऐसी मजबूरी है जो झुक कर सजदे नहीं कर सकता, झुक कर सजदे जमीन पर, है ना कुछ लोग, हाँ, बूढ़े होने की वजह से या किसी हादसे के शिकार होने की वजह से, बीमारी की वजह से डॉक्टर मना किया रहता उनको, आप झुक नहीं सकते या पैर फोल्ड नहीं होते, तकलीफ होती, अजियत होती, ऐसे लोगों के लिए मुआफ है। वो कुर्सी में बैठकर जैसे उनके लिए आसानी है वैसे नमाज पढ़ेंगे, रुकू करेंगे ऐसे ही, फिर सजदा जो है, सजदे में उससे ज्यादा झुकेंगे। यहां पे कुर्सी में बैठकर जो लोग नमाजें पढ़ते, उनसे एक गलती होती है। क्या होती? कुछ लोग खड़े होने की ताकत नहीं रहती उनके पास, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, ताकत नहीं। ऐसे लोग बैठकर तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो खड़े होने की ताकत नहीं रहती, मगर जमीन में नीचे जाकर सजदा करने की ताकत रहती है उनके पास। मगर वो क्या समझते, अब तो हम खड़े नहीं हो सकते ना नमाज पढ़ने के लिए, तो सजदा भी क्यों जमीन पर करेंगे, हम कुर्सी में बैठकर ही कर लेंगे सजदा। ये गलती है। आपके पास ताकत है ना नीचे जाकर सजदा करने की? अगर आपके पास ताकत है, अगर आपको अजियत और तकलीफ और मशक्कत नहीं है जमीन पर सजदा करने के लिए, तो आपको जमीन पे जाकर सजदा करना जरूरी है। खड़े होने की ताकत नहीं, इसका यह मतलब नहीं है कि वो भी मुआफ है आपके लिए, नहीं। अगर आप
کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے بیٹھ کر پڑھ سکتے. اگر آپ سجدہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں زمین پر جیسے نارمل لوگ سجدہ کرتے ہیں تو ویسے ہی کرنا ہے. آپ کرسی سے نیچے اتر کے کہاں جانا؟ سجدے میں چلے جانا. پھر اس کے بعد سجدہ ختم ہونے کے بعد پھر اٹھنا, پھر کرسی میں بیٹھنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بنیادی مسئلہ ہے. اس مسئلے کو معذور قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, سجدہ ہو گیا, اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنا یہ رکن ہے. پھر اس کے بعد 8واں رکن جو ہے سجدے سے سر اٹھانا. سجدہ کرنے کے بعد جب آپ سر اٹھا رہے ہیں, سر اٹھانا یہ بھی رکن ہے. اور 9واں رکن سجدے سے سر اٹھانے کے بعد آپ بیٹھیں گے. اطمینان کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ بیٹھیں گے. اطمینان کے ساتھ کچھ لوگ نہیں بیٹھتے, خاص کر کے احناف میں آپ دیکھیں گے سر اٹھائے فوراً چلے گئے, ابھی سیدھے بیٹھتے بھی نہیں, دونوں سجدوں کے درمیان بیچ میں فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں. نہیں, دونوں سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھتے ہیں نا وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھنا ہے. اس میں بھی جلد بازی نہیں کرنا, اطمینان کے ساتھ بیٹھنا یہ رکن ہے. یہ رکن ہے. 10واں رکن یا 11واں, میں بھول رہا ہوں نمبرات, آخری تشہد میں بیٹھنا. آخری تشہد کے لیے 3 اور 4 رکعت والی نمازوں میں 2 تشہد ہوتے ہیں نا, 3 اور 4 رکعت والی نمازوں میں 2 تشہد ہوتے ہیں. جو آخری تشہد ہے اس تشہد میں آپ کو بیٹھنا ضروری ہے, رکن ہے وہ بھی, اس کو نہیں چھوڑ سکتے. اور 11واں رکن یہ ہے کہ اس آخری تشہد میں تشہد اور درود پڑھنا ہے. آپ درود پڑھنا ہے. درود کا مطلب, تشہد اور درود کا مطلب آخری تشہد میں التحیات للہ والصلوات, یہ جو دعا ہے یہ دعا, اس کے بعد درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم, یہ درود ہے. یہ دونوں پڑھنا بھی رکن ہے. اگر کوئی آدمی آخری تشہد میں التحیات پڑھ لیا, درود نہیں پڑھا, اس کی نماز نہیں ہوتی, پھر اسے نماز پڑھنا پڑے گا اس کو. سمجھ لیں, رکن چھوڑ دیا تو آخری تشہد میں بیٹھنا بھی رکن ہے, اور اس تشہد میں التحیات اور درود پڑھنا بھی رکن ہے. اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس کے بعد کی جو دعائیں ہیں نا وہ رکن نہیں ہے, وہ رکن نہیں. اس کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں آپ, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا, یہ رکن نہیں ہے. رکن کیا ہے؟ التحیات اور درود. آخری جو رکن ہے, آخری رکن وہ کیا ہے؟ سلام پھیرنا. آخری رکن کیا ہے؟ سلام پھیرنا. آپ پوری نماز شروع سے آخر تک اچھے سے پڑھ لیے, لیکن آخر میں آپ نے سلام پھیرنا بھول گئے, سلام آپ نے نہیں پھیرا تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم. نماز, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز کی جو چابی ہے وہ وضو کرنا ہے, اور حرام کرنے والی چیز اللہ اکبر ہے, اور حلال کرنے والی چیز سلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سلام پھیرنا ضروری ہے, رکن ہے وہ, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور آپ نے اس کو کیا کہا کہ حلال کرنے والا سلام. کیا مطلب اب حلال کرنے والا سلام؟ کن چیزوں کو حلال کرتا ہے یہ سلام؟ نماز میں جو چیزیں نہیں کرنا تھا نا آپ کو, ان چیزوں کو پھر سے کیا کرتا, وہ حلال کر دیتا. نماز میں کھانا حرام تھا, لیکن سلام پھیرنے کے بعد کھانا کیا ہو گیا آپ تمہارے لیے؟ جائز, حلال ہو گیا. بات کرنا نماز کی حالت میں حرام تھا, سلام پھیرنے کے بعد جائز ہے, حلال ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ, حلال کرنے کا یہ سلام ہے, حلال کرنے والا سلام ہے. یعنی جو چیزیں نماز میں نہیں کرنا تھا ان چیزوں کو دوبارہ پھر وہ سلام جائز کر دیتا. یہ ارکان ہے, یہ میں نے بتایا ارکان ہے. اب میں 2-3 مسئلے بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اب اس کو غور سے سننا ہے آپ. دیکھیے, یہ جتنے بھی میں نے ارکان بتائے ہیں کام نماز کی حالت میں, اگر کوئی بھی مسلمان جان بوجھ کر
मसला मालूम होने के बाद जानबूझकर इन अरकान में से किसी भी एक रुकन को छोड़ देता है तो उसकी नमाज नहीं होगी, फिर से उसको नमाज पढ़ना पड़ेगा शुरू से आखिर तक। वाज़ेह है मसला ये, जानबूझकर छोड़ता है तो। नंबर 2, अगर कोई भी मुसलमान इन अरकान में से किसी भी रुकन को भूल कर छोड़ देता है, भूल गया, सूरह फातिहा पढ़ना भूल गया, क्या करना उसको? कोई भी रुकन अगर छोड़ दिया तो करना क्या उसको? पहले मैं मसला बता देता हूं करना क्या आपको। देखिए, कोई भी रुकन अगर आप छोड़ते हैं, जो मकाम बताया, भूल कर छोड़ दिया आपने, अगर वो रुकन दूसरी रकात में उस पोजीशन तक पहुंचने से पहले आपको याद आता है तो फौरन उसको आप करेंगे, फिर नमाज कंटिन्यू करेंगे। मिसाल दे रहा हूं आपको। आप नमाज पढ़ रहे थे, सूरह फातिहा पढ़ना भूल गए आप, रुकू किए आप, सजदा किए आप, दूसरे सजदे में याद आया आपको। दूसरे सजदे में क्या याद आया आपको? सूरह फातिहा में भूल गया। करना क्या अब आपको? फौरन उठ खड़े होना। क्या करना आपको? फौरन उठ खड़े होके क्या पढ़ना? सूरह फातिहा पढ़ना। सूरह फातिहा पढ़ के फिर दूसरी सूरत पढ़ के फिर रुकू फिर सजदा। उससे पहले जो सजदा रुकू किए थे ना, उसका एतबार नहीं, उसका एतबार नहीं, गलती से आपने कर दिया, वो नहीं होने के बराबर है। दूसरे सजदे में याद आया तो उठ खड़े होंगे आप, फिर से सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर दूसरी सूरत, फिर रुकू और सजदे करेंगे। दूसरी पोजीशन, एक आदमी ऐसा है नमाज पढ़ रहा था, सूरह फातिहा पढ़ना भूल गया, तब याद आया उसको, दूसरा सजदा करके उठ गया, फिर सूरह फातिहा पढ़ना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, तब याद आया उसको, अरे पहली रकात में मैं सूरह फातिहा पढ़ना भूल गया था। कभी होता है ना, एक चीज पढ़ने से वो चीज याद आती, भूलने की। सूरह फातिहा पढ़ना शुरू किया तो याद आ रहा, अरे पहले सजदे में पहली रकात में पढ़ा ही नहीं सूरह फातिहा, अब करना क्या उसको? हाँ, वो जो पहली रकात थी ना, उसको कैंसिल कर देना। क्या करना उसको? उसको कैंसिल, वो कैंसिल, वो उसका कोई एतबार नहीं। अब ये जो आप पढ़ रहे हैं ना सूरह फातिहा, ये पहली रकात है। आप वो जो रकात थी ना, वेस्ट हो, मैं समझाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, सरा के अल्फाज मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको समझाने के लिए, वो रकात कैंसिल। हाँ, उसके बाद जो सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं ना, वो सूरह फातिहा पहली रकात आपकी शुमार हो। वाज़ेह है मसला। एक दूसरी मिसाल, एक आदमी मिसाल के तौर पे पहली रकात में आया, पढ़ रहे नमाज, रुकू करना भूल गया, सूरह फातिहा पढ़ा, दूसरी सूरत, डायरेक्ट क्या किया? सजदे में चला गया। पहला सजदा किया, दूसरा सजदा किया, फिर उसके बाद उठकर सूरह फातिहा पढ़ा। सूरह फातिहा खत्म होने के बाद याद आया उसको, अरे मैं रुकू करना भूल गया था पहली रकात में। क्या करना उसको? अभी आप क्या करना है उसको? अब फौरन रुकू में जाना है। फौरन क्या करना है उसको? पहली रकात के रुकू में जाना है, फिर उसके बाद कंटिन्यू करना है नमाज। लेकिन एक आदमी ऐसा है, पहली रकात में रुकू भूल गया, दूसरी रकात के रुकू में याद आया उसको, वही पोजीशन पे याद आया, सेम पोजीशन पे, सेम पोजीशन पे याद आता है ना, तो पुराना कैंसिल कर देना, पिछला कैंसिल कर देना। सेम पोजीशन पे अगर याद आता है तो, सेम पोजीशन से पहले अगर याद आता है तो उस रुकू की तरफ चले जाना, या जो चीज आप छोड़े हैं उसको करने की तरफ चले जाना। लेकिन सेम पोजीशन पे याद आता है तो पुराना पूरा कैंसिल, फिर उसको अगला पहली रकात शुमार करके। ये मसला समझ में आया आपको? समझ में आया कि नहीं आया? आया ना इंशाअल्लाह? ठीक है। तीसरा मसला, कोई आदमी भूल से रुकन छोड़ दिया नमाज का, कोई भी रुकन भूल से, नमाज के बाद याद आया उसे। अभी ये जो मैं बता रहा था, कब याद आने की वजह से बता रहा था? नमाज में ही। अभी ये मसला जो मैं बता रहा हूं, नमाज खत्म हो गई उसकी, सलाम फेर लिया, सलाम फेरने के बाद याद आया उसे, अरे मैं सूरह फातिहा पढ़ना भूल गया था। नमाज के फौरन बाद क्या करना उसको?
नमाज पढ़ होने के बाद याद आ रहा उसको कि मैं सूरह फातिहा भूल गया, फौरन। अगर किसी भी मुसलमान को नमाज के फौरन बाद याद आता है वो चीज भूला, तो वो एक रकात दोहराएगा। क्या करेगा वो? एक पूरी रकात पढ़ेगा। उसका तरीका क्या है? नमाज पढ़ के बैठे थे, याद आया कि सूरह फातिहा छोड़े, उठ खड़े होंगे आप, अल्लाहु अकबर बोलेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, दूसरी सूरत पढ़ेंगे, रुकू और सजदा नॉर्मल करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में सजदे सहू करके, सजदे सहू का मतलब जो सजदे करते हैं ना एक्स्ट्रा लास्ट में, देखे होंगे आप इमाम साहब करते हुए कभी कभी, लास्ट में सलाम फेरने से पहले एक्स्ट्रा 2 सजदे करके फिर सलाम फेरना, सजदे सहू करना। फौरन याद आने पर वो एक रकात दोहराएंगे आप, पूरी रकात, एक रकात दोहरा के सजदे सहू करेंगे। चौथा आखिरी मसला, अगर कोई भी बंदे मोमिन और मुसलमान से कोई रुकन छूट गया भूल से, लेकिन वो उसको बहुत देर के बाद याद आ रहा, बहुत देर के बाद, 2-3 घंटों के बाद याद आया उसे, अरे मैं सूरह फातिहा पढ़ना भूल गया था, अब याद आ रहा मुझे। फजर की नमाज पढ़ा, याद आ रहा है 10 बजे उसे, मिसाल के तौर पर। अब क्या करेगा वो? पूरी नमाज पढ़ेगा वो। क्या करेगा वो? पूरी नमाज मुकम्मल पढ़ेगा, पूरी नमाज मुकम्मल पढ़ेगा। और इस जब नमाज पूरी मुकम्मल पढ़ेगा तो सजदे सहू करने की जरूरत नहीं उसे। क्लियर है मसाइल ये? देखो, कोई भी रुकन जानबूझकर छोड़ दिया उसकी नमाज नहीं होती। क्लियर है मसला? नमाज पूरा पढ़ना पड़ेगा उसे। अगर भूल कर छोड़ दे, उसकी 3 हालतें हैं, 3 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन, वो भूला हुआ रुकन नमाज की हालत में ही याद आ जाए उसे। अगर नमाज की हालत में याद आए तो वो ये देखेगा कि किस पोजीशन में है वो, भूले हुए रुकन के पोजीशन में दूसरे पोजीशन में आ गया तो पूरी रकात को कैंसिल करके वहां से कंटिन्यू करेगा। अगर उससे पहले उसको याद आता है तो वो जो छूटा हुआ रुकन है उसको मुकम्मल करके फिर नमाज कंटिन्यू करेगा। दूसरी पोजीशन, दूसरी हालत, नमाज के फौरन बाद अगर याद आता है उसको, वो एक रकात दोहराएगा और सजदे सहू करेगा। तीसरी पोजीशन, अगर उसको नमाज खत्म होने के बहुत बाद में याद आता है तो पूरी नमाज पढ़ेगा, पूरी नमाज पढ़ेगा। ये अरकान और उसकी कुछ तफसीलात मैंने आपके सामने जिक्र की। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप इन मसाइल को अच्छे से समझ रहे होंगे। आप में से अगर किसी का कोई सवाल है तो कर लें, वरना इंशाअल्लाह मजलिस खत्म कर लें। इन चीजों में कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछिए। जी हाँ, सवाल क्या है? इमाम साहब रुकू की हालत में है, आप पीछे से आए, अब रुकू में मिलने जा रहे हैं आप इमाम के साथ, तो क्या रकात बांध के ऐसा जाना है या डायरेक्ट जा सकते हैं? जवाब यह है कि डायरेक्ट जा सकते हैं। आप आए, डायरेक्ट भी जा सकते हैं, बांध के भी जा सकते हैं, दोनों में गुंजाइश है उसमें, दोनों में गुंजाइश है। एक आदमी आया, अल्लाहु अकबर बोल के चला गया, ठीक, कोई मसला नहीं। लेकिन एक दूसरा आदमी आया, अल्लाहु अकबर बोल के डायरेक्ट रुकू में गया, दोनों गुंजाइश है, दोनों इंशाअल्लाह चलेगा। लेकिन अल्लाहु अकबर बोलना जरूरी है, नहीं बोलेंगे तो नमाज नहीं होती। जी, दो रकात में तवर्रुक बोलते हैं। नहीं 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 नहीं, 2 रकात में बैठने का जो तरीका है, सीधा पैर, आपका जो सीधा पैर है वो सीधे पैर पर बैठेंगे आप, लेफ्ट पैर खड़ा करेंगे और सीधे पैर पर बैठेंगे पहले तशहुद में, और आखिरी पहले तशहुद में, आखिरी तशहुद में जमीन पर, वो तवर्रुक बोलते हैं उसे। हाँ ऐसा। हाँ, 2 रकात की नमाजों में करना क्या है, इस मसले में उलमा के 2 बातें हैं। बाज उलमा बोलते हैं कि नहीं, पैर पर बैठ सकते, बाज उलमा बोलते हैं जिस तरीके से आप बैठे हैं वैसे बैठ सकते बोलते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि दोनों में इंशाल्लाह गुंजाइश है उसमें। तवर्रुक भी कर सकते हैं आप, कोई इफ्तिराश भी कर रहा है, इंशाल्लाह कोई हरज की बात नहीं है उसमें।
गुंजाइश है उसमें, इंशाअल्लाह मसले में गुंजाइश है। हाँ हाँ जी। अगर इमाम साहब के पीछे कोई नमाज पढ़ रहे हैं, मुख्तदी जो पीछे खड़े हैं लंबी सूरत शुरू कर दी, उनकी सूरत मुकम्मल ही नहीं हुई, होने से पहले ही रुकू में चले गए इमाम साहब, तुम अब पीछे वालों को करना क्या है, वो जहां तुम्हें पड़े ना उतने तक स्टॉप करके रुकू में चले जाना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही, इमाम को इसलिए बनाया गया ताकि तुम उसको फॉलो करो, छोड़ देना क्योंकि उसको फॉलो करना जरूरी है, वो रुकू में गया तो रुकू में चले जाना, आधी सूरत रहे तो भी छोड़ के चले जाना। जी हाँ जी हाँ। देखिए अगर आप इमाम के साथ नमाज शुरू करते हैं तो आपके पास इतना तो वक्त होता है कि आप सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं। शुरू से अगर शुरू कर रहे हैं इमाम के साथ, तब ऐसी सूरत में आपको पूरे सूरह फातिहा पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे तो वो रकात दोहराएंगे आप। सलाम फेरता ना इमाम, आपको करना क्या है, जो रका आपने नहीं मुकम्मल नहीं की ना सूरह फातिहा, वो समझ लो कि वो रकात नहीं हुई आपकी, आखिर में उठ के आप। लेकिन दूसरा मसला इससे जुड़ा हुआ है कि आप वजू करके आए, इमाम साहब खड़े हुए हैं, आप आए, मिले, सूरह फातिहा शुरू किया, इमाम साहब खड़े हैं बोल के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अभी दूसरी आयत में थे इमाम साहब रुकू में, और आपको मालूम है कि इमाम साहब थोड़ा जल्दी रुकू से उठते हैं, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, अगर मैं पढ़ूंगा तो रुकू मिस हो जाएगा मेरा, तब आपको जितने आपने आयतें पढ़ी हैं उसको स्टॉप कर दें, फौरन रुकू में चले जाएं और रकात हो जाएगी। आप अगरचे आपने आधी सूरत पढ़ी है लेकिन रुकू में आप मिल गए ना, क्योंकि पूरी सूरत पढ़ने का मौका नहीं था आपके पास, मजबूरी थी आपकी। शेख इब्न बाज रहमतुल्लाहि अलैहि का यही फतवा है। जो समझ में आया, अगर आपको मौका रहने के बाद भी नहीं पढ़ते तो रकात नहीं होती, लेकिन मौका ही नहीं मिला आपको इतना, पूरी सूरत पढ़े, कभी ताखीर से आते हैं, समझ गए ना दोनों सिचुएशन। जी ठीक है, इंशाअल्लाह इसी बात पर अपनी बात खत्म करते हैं। अल्लाह से दुआ करें कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को दीन का इल्म हासिल करने, उस पर अमल करने वाला बनाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस जमा होने को कबूल फरमाए, क़ियामत के दिन अल्लाह ताला हमारे इस अमल को मीज़ान हसनात में शुमार फरमाए। अल्लाह ताला हमारे जितने भी इन मजलिसों में शरीक हो रहे हैं अल्लाह इनकी मग़फ़िरत कर दे, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि इस तरह की मजलिसों में शरीक होने वालों को अल्लाह ताला मुआफ़ कर देता है, बख्श देता है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के गुनाहों को मुआफ़ कर दे, इन मजलिसों के गुनाहों के कफ़ारे का सबब बनाए, आमीन। जाते जाते इख्तितामी मजलिस की दुआ पढ़ते जाएं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।